Good morning students, welcome to class. Today we are going now social political life. Okay, so in the social political life we will taking about uh, democracy and equality. Okay, so in the last year we seen the different types of government. Okay, some brief information about the different types of government which are continuously which are ruling on the peoples. Okay, so there are different types of government. Okay, different types of government such as aristocracy, monarchy, theocracy and democracy. Okay, so aristocracy means that the cracy. So cracy means which is the rule. Okay, cracy means that rule. Cracy means rule. Okay, or govern. So aristocracy means which is ruled by the noble person. Monarchy means only the ruling of the only one person. Okay, theocracy means that is the rule by the gods, are ruled by the god, any religious leader. Okay, and democracy means which is the rule by the peoples. है ना? So in monarchy only one man is ruling on the peoples. In theocracy means which is the rule by the religions. Okay, and democracy which is ruled by the people. So what will happen in the democracy? Democracy which is based on the principle of equality, है ना? तो जो डेमोक्रेसी जो होती है ना, डेमोक्रेसी which is ruled by the people, democracy which is ruled by people. Democracy means is the rule by the people, and this democracy is based on the principle of equality. So principle of equality. Principle of equality. So what happened? A democracy is based on the principle of equality, है ना? तो ये जो डेमोक्रेसी जो है ये किसके ऊपर बेस्ड है? इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है. So what do we mean by the equality? है ना? अब इक्वालिटी क्या है ना? अब जो इक्वालिटी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं. So what is the equality? So equality means it is refers to the state of being equal in terms of status, rights and opportunities. Okay, so equality किसके ऊपर बेस्ड है? So equality, so equality is based on the status, rights and opportunities. So status है ना कि the person is poor, are rich person, women's are males. Okay, and rights है ना, कौन से उसको rights है, कौन से उसको अधिकार है. उसके बाद में है opportunities. Opportunities means in the employment, opportunity in employment, opportunity in politics, opportunity in right to vote. So these are the principle or basis on this the equality is established. Okay, so equality refers to the state of being equal in terms of status, right and opportunities. Okay, so equality किसके ऊपर बेस्ड होती है? स्टेटस के ऊपर, राइट के ऊपर एंड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर में बेस्ड होती है. ठीक है. सो अब देखेंगे इन इंडिया. So in India
equality. Okay, so democracy and equality. डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी. सो इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि जो डेमोक्रेसी इसमें क्या है कि सक्सेसफुल है ना, यानी रूल बाय द पीपल इज सक्सेसफुल. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो रूल करने वाले जो लोग हैं है ना, जो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव जो है, लास्ट ईयर वी सीन अबाउट दैट ना कि रूल बाय द पीपल. अब रूल बाय द पीपल एंड फॉर पीपल. रूल बाय पीपल एंड फॉर पीपल. तो इसमें क्या होता है कि जो भी अपने ऊपर जो रूल जो बनाते हैं ना, जो भी लास्ट टाइम वी सीन अबाउट दैट, जैसे एमपी है ना, एमपी मींस दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड member of legislative assemblies. ओके, ये हो गया उसमें. फिर जो अपन ने देखा था कि विलेज लेवल में है ना, विलेज लेवल में क्या होती है कि ग्राम पंचायत. तो और सिटी में क्या होती है कि जो भी नगर परिषद जो है या कॉर्पोरेशंस जो है ना, तो ये जो कॉर्पोरेशंस है, तो यहाँ के जो भी रूलर जो है, लीडर जो है ना, जो पॉलिटिकल रूलर जो है, सो दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल. अब कैसे होते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल? बाय द वोटिंग बाय द पीपल है ना. क्या करते हैं कि जो लोग जो होते हैं, अपने जो एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं, सरपंच होता है ना, प्रेसिडेंट जो होता है, फिर कॉर्पोरेशन जो है, काउंसिल जो है, तो इसके चेयरमैन. तो ये क्या करते हैं कि कुछ लोग अपने आपस में ही डिसाइड करके अपने किसी एक को एज ए रिप्रेजेंटेटिव करके उसको वोट कास्ट करके इलेक्ट किया जाता है. द पर्सन हु विल सिक्योरिंग मेजॉरिटी नंबर ऑफ वोट, ही विल बी डिक्लेयर्ड एज अ विनर एंड ही विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया फॉर द 5 years ऑफ टाइम पीरियड. ओके, सो अब इंडिया का जो डेमोक्रेसी है ये क्या है कि सक्सेसफुल है. और ये सब सक्सेसफुल होने के पीछे रीजन क्या है कि इज द राइट टू वोट है ना. हर एक पीपल्स को क्या दिया है कि राइट टू वोट दिया गया है. द राइट टू वोट मीन्स क्या है? द पर्सन अबोव द एज ऑफ 18 और अबोव दैट, आइदर ही विल or she will be men, women, poor, rich or illiterate and okay. So every citizen who is 18 years of age or above the age is entitled to vote in elections irrespective of caste है ना. irrespective of caste इसमें इम्पोर्टेंस है कि irrespective of caste कि वो कौन से कास्ट में बिलोंग करता है ये मायने नहीं रखता उसमें. उसके बाद में है रिलीजन, वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है ये भी मायने नहीं करता. और जेंडर है ना, वो कौन से जेंडर में है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, ये भी उसमें मायने नहीं करता है ना. लास्ट ईयर अपन ने देखा था ये सब चीजों के बारे में. ठीक है. सो द राइट टू वोट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज. ओके, right to vote is known as universal adult franchise. So right to vote means that the right to vote में क्या होता है कि every people irrespective of their caste, religion, gender have right to vote on their choice. Okay, यानी वो अपने पसंद से अपने किसी पर्टिकुलर लीडर को चूज करके दे सकते हैं. इट इज अ राइट टू वोट. और इसी को राइट टू वोट को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज कहा जाता है. ठीक है. तो जो पॉलिटिकल लैंग्वेज में है कि व्हाट इज मीन बाय द डेफिनेशन विल बी आस्किंग टू यू कि व्हाट इज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज? द पर्सन अबव द एज ऑफ 18.
at the age of 18 and above that, irrespective of their caste, religion and gender, is right to vote, which is known as a universal adult franchise. Okay, and apart from that, ये सब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज होने के बाद में भी क्या है कि नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज है, बट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया बिकॉज ऑफ द यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो पहले देखा अपन ने कि व्हाट इज द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स विच इज द रूल बाय द पीपल. और डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस्ड है? डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी. एंड व्हाट इज मीन बाय इक्वालिटी? इक्वालिटी मीन्स दैट द इक्वालिटी इज रेफर्स टू state of being equal in terms of status, opportunities and rights. Okay, so democracy किसके ऊपर बेस्ड है? इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है. और अब जो डेमोक्रेसी जो है इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, और ये इक्वालिटी किसके ऊपर बेस्ड है? इक्वालिटी विच इज बेस्ड ऑन द राइट टू वोट. ओके, अब राइट टू वोट मीन्स दैट कि the person above the age of 18, irrespective of their caste, religion and gender, have right to take part in the election and right to cast their vote to their likely representative. Okay, so these are the basis for the existence of democracies. Okay, अब सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी राइट टू वोट है, इक्वालिटी भी है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम ऑफ द इनइक्वालिटीज आल्सो एक्जिस्टिंग इन द इंडिया. ओके, सो व्हिच आर देम? सो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज. ओके, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज. टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज. ओके, सो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज में क्या है? इनइक्वालिटीज इन इंडिया आर बेस्ड ऑन द. अब इनइक्वालिटीज किसके ऊपर बेस्ड हो सकती है ना? कि देखा कि रिलीजन है, उसके बाद में है कास्ट, उसके बाद में है सेक्स, है ना, फिर उसके बाद में है प्लेस ऑफ बर्थ. अब देखो, इनइक्वालिटीज मींस रिलीजन. सो इंडिया हैविंग द डिफरेंट रिलीजन, है ना, सम ऑफ देम बिलोंगिंग टू हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई एंड सो ऑन. ओके, एंड डिफरेंट कास्ट एंड सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ओके, उसका बर्थ कौन से प्लेस में हुआ है? सो on that basis the types of inequalities are exist. Okay, the most common, so all of you know that the most common inequalities exist on the basis of caste system. Okay, so अपन देखते कि अपने नियर बाय एरिया में या अपने नियर बाय एरिया में या फिर सराउंडिंग में कि अलग अलग कास्ट के बेसिस पे क्या किया जाता है कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. The peoples are discriminating on the basis of their caste, and it is the main factor which are inequality, I mean, differentiate the people on the basis of their caste. Okay.